Assalamu alaikum everyone. Let's start with the paper 2020 June variance 11. Ethene can be oxidized to form epoxy ethane. The delta H value is negative, which means reaction is exothermic. Which set of conditions give the greatest yield of epoxy ethane at equilibrium? अगर मुझे yield ज़्यादा चाहिए तो इसका मतलब equilibrium needs to be moved towards right hand side, and for that we need low temperature because reaction is exothermic. So low temperature जो है वो हमारे पास A में है, low temperature हमारे पास C में है, and since we have 1.5 moles here and 1 mole of here, so if we increase the pressure, obviously equilibrium favors towards right hand side, and therefore we need more high pressure, and therefore A is going to be the right answer. Next, cobalt can form the positive ion. This complex has a charge of plus. What is the oxidation number of cobalt in this ion? So beta cobalt को हम X ले लेते हैं. Ammonia is neutral, it has no charge, so ignore it. Chlorine has -1 charge, multiply by 2 karo because we have 2 chlorine atoms. Whole charge equals to +1, so it's going to be +3. The right answer is C. Now, when considering one molecule of ethene, which row describes both the hybridization and the atomic orbitals in the carbon atom and the overall bonding? Okay, तो आप जानते हैं इथीन का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं जो हमने क्लास में बना के भी दिया है आपको और आपने पढ़ा है तो ये होगा. अब इस इथीन में आप जानते हैं कि ये कार्बन भी क्या होगी, sp2 हाइब्रिडाइज. इस कार्बन को भी क्या बोलेंगे, sp2 हाइब्रिडाइज. तो sp2 हाइब्रिडाइज यहाँ भी है, sp2 हाइब्रिडाइज यहाँ भी है, इसका मतलब या तो ए आंसर है या बी आंसर है. अब बॉन्डिंग क्या है भाई, टोटल सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5. टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 5. और टोटल पाई बॉन्ड कितने हैं, 1. तो टोटल सिग्मा बॉन्ड 5, पाई बॉन्ड 1, विच मींस बी इज द राइट आंसर. फिर आपके पास बेटा 10 cm cube of ethane is burnt in 45 cm cube of oxygen at a pressure of 101 kilopascal and at a temperature of 200 degree Celsius. यानी ये रूम टेम्परेचर नहीं है, सही है. Now the next is, what is the total volume of gas present when the reaction is complete? Okay, so what we can do is, first of all we need to make the equation. हमारे पास इथेन है, हम कंप्लीट कंबस्शन करेंगे तो ये हो जाएगा okay. So the thing is, when ethane is burnt in the presence of excess oxygen, it will turn to carbon dioxide and water, and obviously we have 200 degrees Celsius temperature, right? इसका मतलब water must be in gaseous state, क्योंकि water boil हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो 200 पे तो गैस होगा ही होगा. ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है. नाउ मोलर रेशियो देख लेते हैं, ये 1:3.5, 1:2 और ये 1:3. भाई अगर आपने 10 cm क्यूब ऑफ इथेन लिया है तो ऑब्वियसली वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से कितना आ जाएगा, 20 cm क्यूब. सही है. अगर 1:3 का रेशियो है तो बताइए वॉल्यूम ऑफ स्टीम क्या हो जाएगा आपके पास, 30 cm क्यूब, बिकॉज ऑफ 1:3 का रेशियो. नाउ आप जानते हैं कि आपके पास 1:3.5 का रेशियो है बिटवीन इथेन एंड ऑक्सीजन, तो इसका मतलब यहाँ से 35 cm क्यूब ऑफ गैस जो है वो रिएक्ट हो जाएगी, राइट. आपके पास वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इनिशियली कितनी थी, 45 cm क्यूब, ये लिखी हुई है.
रिएक्टेड ऑक्सीजन कितनी है 35 cm3। रिमेनिंग ऑक्सीजन कितनी होगी बेटा आपके पास 10 cm3। तो आप नोट करें आपके पास टोटल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कितना आ जाएगा आफ्टर द रिएक्शन 20 plus 30 plus 10, so it's going to be 60 cm3। therefore D is going to be the right answer। ठीक है। now question number 5, two reactions are shown। I repeat, two reactions are shown। एक रिएक्शन ये है दूसरा रिएक्शन ये है आपके पास। if molar amounts are used, how can the two energy changes associated with these reactions be described? ओके अब पहली तो बात ये कि यहाँ पर कोवलेंट मॉलिक्यूल है और ये कन्वर्ट हो गया हाइड्रोजन एटम्स में। इसका मतलब कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हो गया। ब्रेकिंग ऑफ कोवलेंट बॉन्ड हो रहा है यहाँ। और ब्रेकिंग ऑफ कोवलेंट बॉन्ड जब भी होता है उसको हम क्या कहते हैं बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। तो इसका मतलब पहले वाले रिएक्शन में तो बॉन्ड एनर्जी इन्वॉल्व हो रही है। ठीक है। और जाहिर सी बात है कार्बन मोनोऑक्साइड बर्न हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो बर्निंग ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज बेसिकली कंबस्शन। ठीक है जी। तो देखें ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट बिकॉज ये एटोमाइजेशन नहीं है। ठीक है एटोमाइजेशन नहीं है। फर्स्ट रिएक्शन इज नॉट एटोमाइजेशन। ठीक है फिर वो क्या कह रहे हैं एंथैल्पी चेंज ऑफ एटोमाइजेशन। अगेन एटोमाइजेशन नहीं है फर्स्ट वाला रिएक्शन। ठीक है जनाब। उसके बाद है बॉन्ड एनर्जी विच इज राइट एंड एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबस्शन विच इज आल्सो राइट। तो इसका मतलब सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। और एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन भी नहीं है ये क्योंकि फॉर्मेशन हमेशा कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से होता है। ये मॉलिक्यूल है इसलिए ये फॉर्मेशन नहीं है। ये भी गलत हो गया। The diagram shows the Boltzmann energy distribution curve for molecules of a sample of a gas at two different temperatures, which latter on the axis represents the most probable energy for molecules of the same sample of a gas at lower temperature। अच्छा जो मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी होती है उसके मुताबिक मैंने आपको बताया था वो टॉप पॉइंट ऑफ द कर्व होता है। यानी आप समझ लीजिए दिस इज द मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी। ठीक है और इस स्केच में दिस इज द मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी। राइट अब जब आप टेम्परेचर कम करते हैं तो जाहिर सी बात है काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। जब काइनेटिक एनर्जी कम होगी कोलिजन फ्रीक्वेंसी कम होगी। अब कोलिजन फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी तो जाहिर सी बात है fewer molecules have energy than activation energy। Also curve shift towards लेफ्ट हैंड साइड। जब हाई टेम्परेचर पे कर्व राइट हैंड साइड जाता है तो लो टेम्परेचर पे लेफ्ट हैंड साइड जाएगा। तो राइट आंसर क्या बनेगा आपके पास ए क्योंकि मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और कर्व मैक्सिमम शिफ्ट टू द राइट हैंड साइड को भी लेफ्ट हैंड साइड को भी चला गया। फिर वो आपसे कह रहे हैं व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ केपी फॉर द रिएक्शन शोन। ठीक है यूनिट्स ऑफ केपी
तो एक्सप्रेशन लिख लेते हैं भाई इसका, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड ओवर पार्शियल प्रेशर ऑफ स्टीम। कार्बन को हम लेंगे नहीं क्योंकि वो सॉलिड है। आप जानते हैं कि ये यूनिट इस यूनिट से कैंसिल हो जाएगा, तो पैस्कल बचेगा। तो राइट आंसर इज बी। In this question, you should use changes in oxidation number to balance the chemical equation. वो कह रहे हैं acidified potassium dichromate 6 solution can oxidize V2 plus ions. The equation for the reaction shown below. What is the ratio of A and B in the correctly balanced equation? ठीक है, दो चीजें हो रही हैं यहाँ पर. Dichromate 6 ions will are converting into chromium 3 plus ions, and V2 plus ions are converting into VO3 negative, right? तो अब देखिए क्या होगा. अब होगा ये कि आपके पास V2 प्लस है, it is converting into VO3 minus. Problem is कि यहाँ 3 ऑक्सीजन एटम है, तो बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पर 3 वाटर मॉलिक्यूल अप्लाई कर देता हूँ. यहाँ 6 हाइड्रोजन एटम हो गए, तो यहाँ पर 6 हाइड्रोजन आयन कर लेते हैं. Let's talk about the charge here. Over here we have +5 and over here we have +2. तो चार्ज दोनों तरफ बैलेंस हो जाए, इसलिए मैं यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स यूज कर लूंगा, राइट. नाउ डाइक्रोमेट 6 ions are converting into chromium 3 plus ions. यहाँ 2 लगाइए. 7 ऑक्सीजन है तो 7 वाटर मॉलिक्यूल. 14 हाइड्रोजन एटम्स हो गए तो यहाँ 14 हाइड्रोजन आयंस. चार्ज बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स लगाएंगे. दैट्स व्हाट वी हैव डन इन दी ion electron rules topic. Now we need to balance the number of electrons, and for that we need to multiply this equation by 2. So ये number of electrons balance हो जाएंगे. So final equation is going to be like this. Final equation इस तरह से लिखी जाएगी. Cr2O72 negative plus 2V2 plus 6H2O plus 14 hydrogen ion, arrow 2 chromium 3 plus 2 VO3 minus plus 12 hydrogen ion plus 7 H2O. वो आपसे कह रहे हैं कि A और B का रेशो बताओ. तो ये A है, ये B है, तो इक्वेशन में ये 1 मोल आया है और ये 2 मोल आया है, तो राइट आंसर इज B. Next, a sample of argon gas has a mass of 0.20 gram. Pressure is this, and the temperature of argon is 12 degrees Celsius. What volume does this gas occupy? मुझे वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए कह रहे हैं, ठीक है. तो सबसे पहली बात, टेम्परेचर आपके पास 12 डिग्री सेल्सियस है, इसमें 273 ऐड करेंगे, तो ये आपके पास बन जाएगा 273 प्लस 12 is going to be 285. ठीक है, सही है. और बेटा R की वैल्यू हमें पता होती है 8.31, तो हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे PV इक्वल्स टू nRT. मुझे वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो ये हो जाएगा nRT अपॉन P. मैंने वैल्यूज प्लग इन करनी है इस फॉर्मूले में. V इक्वल्स टू n, n मुझे मालूम नहीं है, बट n इज बेसिकली मास अपॉन mr, एंड देन ठीक है. अब मैं वैल्यूज प्लग इन कर लेता हूँ. मास मुझे पता है 0.20, R की वैल्यू मुझे पता है 8.31, टेम्परेचर मुझे पता है 285 केल्विन, mr of argon is basically 39.9 into प्रेशर आपके पास है 100,000 किलोपास्कल. तो यहां से वॉल्यूम बेटा आपके पास कितना आएगा,
0.000119 मीटर क्यूब, आपने इसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है बिकॉज सारे के सारे वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है। तो आप जानते हैं 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब। तो ये वॉल्यूम हो जाएगा आपके पास 119 सेंटीमीटर क्यूब। तो 119 सेंटीमीटर क्यूब इज बेसिकली डी इज द राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, in which pair does each species have the same number of unpaired electrons? Guys, unpaired electrons निकालने मुझे, इसका मतलब स्पिन कॉन्फ़िगरेशन करनी है। एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13 है, 10 इलेक्ट्रॉन्स की जगह नियॉन, ये 3s2 और ये 3p1 और ये हो जाएगा कॉपर आयंस, एटॉमिक नंबर 29 होता है। 18 इलेक्ट्रॉन्स की जगह आर्गॉन, 3d में 9 हो जाएंगे। तो आप नोट करें, इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो राइट आंसर इज ए। आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, बोथ ऑफ देम हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और ये वाला भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। सो ऑप्शन ए में आ गया, इसलिए बाकी डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद है बेटा हमारे पास a sample of solid ammonium chloride decomposes on heating। ठीक है, वो कह रहे हैं टोटल ऑफ 2.4 into 10 to the power minus 2.4 into 10 to the power 21 molecules of gas are formed। वो कह रहे हैं आपसे हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट इन द गैसियस प्रोडक्ट। तो सबसे पहले ये देखिएगा कि ये जो इक्वेशन आपने बनाई है, इस इक्वेशन के अंदर टोटल मोल्स कितने हैं? 2 मोल्स हैं। सही है। तो ये जो आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं, ये टोटल मॉलिक्यूल्स हैं, इन दोनों को मिला के दिए हमें फॉर 2 मोल्स। तो आप 1 मोल के लिए निकाल लीजिए। तो हम यहाँ लिख देते हैं मॉलिक्यूल्स फॉर 1 मोल, ये हो जाएगा 2.4 इंटू 10 टू द पावर 21। इसको डिवाइड कर दो आप 2 से, तो ये हो जाएगा आपके पास 1.2 इंटू 10 टू द पावर 21। ठीक है जी। प्रॉब्लम ये है कि आपके पास 1 मोल ऑफ अमोनियम क्लोराइड में टोटल कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं? 3 अमोनिया में है हाइड्रोजन एटम्स और 1 HCl में है हाइड्रोजन एटम। तो टोटल हाइड्रोजन एटम्स इन दोनों को मिलाकर कितने हो गए? 4। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ लिखूंगा 4 हाइड्रोजन एटम्स। तो अगर इन गैसियस प्रोडक्ट्स, लिख देते हैं इन गैसियस प्रोडक्ट्स, अगर आपके पास ये इतने मोल हैं 1.2 इंटू 10 टू द पावर 21 मोल, तो बताइए कितने एटम्स होंगे? तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूँ बेटा, तो ये हो जाएगा 1.2 एक्सपोनेंट 21 इंटू 4। तो ये हो जाएगा 4.8 इंटू 10 टू द पावर 21 एटम्स। तो 4.8 इंटू 10 टू द पावर 21 एटम्स का मतलब सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। Now the next question is, white powder is a mixture of sodium chloride and sodium iodide। ओके, बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, हमारे पास सोडियम आयोडाइड। डिसॉल्व इन वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब। ठीक है,
एन एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इज एडेड टू द टेस्ट ट्यूब, ठीक है, प्रेसिपिटेट एक्स इज ऑब्जर्व, जाहिर सी बात है सिल्वर क्लोराइड बनेगा व्हाइट प्रेसिपिटेट्स और सिल्वर आयोडाइड के बन रहे होंगे येलो प्रेसिपिटेट्स। अब तक मुझे इतना समझ में आया है फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ने के बाद कि सिल्वर क्लोराइड के आपके पास क्या होंगे, व्हाइट प्रेसिपिटेट्स, और सिल्वर आयोडाइड के आपके पास क्या होंगे, येलो प्रेसिपिटेट्स इन द टेस्ट ट्यूब, ठीक है। वो कह रहे हैं इन एक्सेस ऑफ, वो कह रहे हैं इन एक्सेस ऑफ concentrated ammonia is then added to the test tube containing X. After the test tube had been shaken, precipitate Y is observed. Which statement about X और Y is correct? जाहिर सी बात है जब आपने टेस्ट ट्यूब के अंदर अमोनिया ऐड किया तो अमोनिया ऐड करने से व्हाइट प्रेसिपिटेट्स डिसॉल्व हो जाएंगे, लेकिन येलो प्रेसिपिटेट्स तो इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन एक्वस अमोनिया होते हैं। तो ये जो वाई प्रेसिपिटेट्स आपके पास आ रहे हैं ये एक्चुअली सिल्वर आयोडाइड के हैं, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड तो डिसॉल्व हो गया। सो वो आपसे कह रहे हैं कि X इज अ प्योर व्हाइट कलर, आई डोंट थिंक सो कि प्योर व्हाइट कलर है बिकॉज उसमें येलो भी आ रहा होगा, तो ये गलत हो गया। X इज अ प्योर सिल्वर आयोडाइड, गलत हो गया क्योंकि X जो है वो मिक्सचर है सिल्वर आयोडाइड और सिल्वर क्लोराइड का। Y is pure silver chloride, wrong. Y is yellow, that's right. So D is going to be the right answer. Now the next question is 6.90 gram of ammonium salt is heated with an excess of aqueous sodium hydroxide. Volume of ammonia produced measured is 2.51 into 10 to the 2.5 dm. Which ammonium salt is used? और सबके MR given है। अब जरा गौर से सुनो, तुम जानते हो कि जब ये अमोनियम कार्बोनेट डिकम्पोज होगा तो इससे अमोनिया गैस रिलीज होगी, एंड ऑब्वियसली अमोनिया माइंस दो होंगे तो दो अमोनिया गैस रिलीज करेंगे, ठीक है। तो ये याद रखना कि इससे तुम्हें 2 अमोनिया गैस मिलेगी, इससे तुम्हें सिर्फ 1 मोल ऑफ अमोनिया गैस मिलेगी, इससे तुम्हें सिर्फ 1 मोल ऑफ अमोनिया गैस मिलेगी, और इससे तुम्हें एक्चुअली 2 मोल्स ऑफ अमोनिया गैस मिलेगी। जहां पर 2 अमोनिया माइंस होंगे वहां 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, जहां 1 अमोनिया माइन होंगे वहां पर 1 मोल ऑफ अमोनिया। अब हम कैलकुलेशन कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास कैलकुलेशन काफी ज्यादा है, तो इसलिए हम जरा क्विक कर लेते हैं, ठीक है। हम सबसे पहले इससे रिलेटेड बात करेंगे, ये होगा 2.51 डिवाइडेड बाय 24 डीएम क्यूब, तो हमारे पास मोल्स आ जाएंगे 2.51 डिवाइडेड बाय 24, तो हमारे पास मोल्स आ रहे हैं बेटा 0.104 मोल्स, ठीक है। अच्छा, जो मोल्स अमोनियम कार्बोनेट के आपने निकाले उसको मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो आपके पास मोल्स ऑफ अमोनिया आ जाएंगे, क्योंकि अमोनिया 2 थे आपके पास, तो ये हो जाएगा 0.209 मोल। अगर आपने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो आपने इसको 24 डीएम क्यूब से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा आपके पास इंटू 24, ये हो जाएगा बेटा 5.02। अब ये वैल्यू जो है इस वैल्यू से टैली नहीं हो रही है, इसका मतलब ये आंसर गलत होगा, ठीक है। बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरह से मुझे ऑप्शन ए के लिए मैंने वर्किंग की है तो मैं ऑप्शन बी के लिए भी करूंगा सेम तरह की वर्किंग। तो मैं सबसे पहले 6.9 कोड, ओ माय गुडनेस, माय गुडनेस, माय बैड, माय बैड, माय बैड, आई एम रियली रियली सॉरी। देखिए सबसे पहले मोल्स निकालने 6.9 डिवाइडेड बाय 96, तो ये आपके पास मोल्स आ रहे हैं, माय गुडनेस, 6.9 divided by 96, so it's going to be 0.0718 moles। इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से तो मोल्स ऑफ अमोनिया आ जाएंगे which is 0.1437 moles, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो इसको 24 से, सो मेरे पास आएगा 3.45 डीएम क्यूब। गाइस ये वैल्यू इस वैल्यू से टैली नहीं हो रही, होपफुली ए गलत हो जाएगा। फिर आपके पास है बी
यहाँ से मोल्स कैलकुलेट करने, तो 6.9 को आप डिवाइड कर दीजिए 53.5 से, तो आपके पास मोल्स आ जाएंगे 0.128, क्योंकि इसमें 1 मोल ऑफ अमोनिया है, तो जो मोल्स अमोनियम क्लोराइड के हैं वही मोल्स ऑफ अमोनिया है। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 24 से, तो आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 3.09 dm3। एंड ऑब्वियसली ये वैल्यू भी टैली नहीं हो रही, इसका मतलब ये भी गलत। अब हम अमोनियम नाइट्रेट के लिए वर्किंग करेंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास 6.9 डिवाइडेड बाय 80, तो आपके पास मोल्स ऑफ अमोनियम नाइट्रेट आ जाएंगे 0.086 मोल्स। जो मोल्स अमोनियम नाइट्रेट के हैं वही मोल्स ऑफ अमोनिया, बिकॉज 1:1 का रेशो होगा। मल्टीप्लाई कर दीजिए वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए इंटू 24, तो ये हो जाएगा इंटू 24, तो ये बनेगा आपके पास 2.07 dm3। ये वैल्यू भी इससे टैली नहीं हो रही, इसका मतलब ये भी आंसर गलत। तो जब ए गलत, बी गलत, सी गलत, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, एनेक्सेस। आप चाहें तो उसी तरह की वर्किंग डी के लिए भी कर सकते हैं, बट मेरे ख्याल से अब समझ में आ गई बात कि 3 हमने गलत कर दिए, तो एक बचा, वो करेक्ट होगा हमारा। इन एक्सेस ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज शेकन विद वाटर, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में। इफ यू नो, इज कन्वर्टिंग इनटू मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है। फिर वो कह रहे हैं द रिजल्टिंग मिक्सचर इज फिल्टर्ड इनटू द टेस्ट ट्यूब पी। ठीक है। फिर वो कह रहे हैं आपसे कि इन एक्सेस ऑफ बेरियम ऑक्साइड इज शेकन विद वाटर, तो यहां से बनेगा भाई बेरियम हाइड्रोक्साइड। फिर वो कह रहे हैं द रिजल्टिंग मिक्सचर इज फिल्टर्ड इनटू द टेस्ट ट्यूब। ठीक है। वो कह रहे हैं आपसे कि विच ऑक्साइड रिएक्ट्स मोर रेडली विद वाटर, तो भाई बेरियम रिएक्ट्स मोर readily with water because of its high reactivity। सही है। एक तो मैंने जजमेंट यहां से कर ली कि बेरियम ऑक्साइड रिएक्ट्स मोर रेडली विद वाटर, तो या तो ए आंसर है या फिर बी आंसर है। आगे चलते हैं। वो आपसे कह रहे हैं कि जनाब विच फिल्ट्रेट हैज लोअर पीएच। आप जानते हैं कि ये वीक एल्कलाइन सॉल्यूशन देता है, और आप जानते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन सॉल्यूशन देता है। तो जो वीक एल्कलाइन सॉल्यूशन देगा उसकी पीएच लोअर होगी। तो वीक एल्कलाइन सॉल्यूशन हैज लोअर पीएच। तो लोअर पीएच किसकी होगी भाई? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, यानी पी की होगी लोअर पीएच, है ना। इस पी की होगी लोअर पीएच, तो पी पे लगाइए, तो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट, एलिमेंट जी हैज अ जाइंट स्ट्रक्चर। ओके, तो भाई पहली तो बात ये कि जाइंट स्ट्रक्चर जो है ना, किस किस के होते हैं भाई? सोडियम का होता है, मैग्नीशियम का होता है, एल्यूमिनियम का होता है, सिलिकॉन का होता है। इन तमाम के जाइंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। इनके जाइंट मेटालिक होते हैं और इसका जाइंट कोवलेंट होता है। आगे चलें। द क्लोराइड ऑफ जी रिएक्ट्स विद वाटर। याद रखिएगा, जो क्लोराइड ऑफ जी बना रहे हो वो रिएक्ट कर रहा है वाटर से, और दे रहा है आपको एक सोल्यूशन जिसकी पीएच 5 से कम है, यानी स्ट्रॉन्ग एसिडिक सोल्यूशन देगा आपको। आप जानते हैं कि इस सिनेरियो में सोडियम भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि उसका जो क्लोराइड है वो न्यूट्रल सोल्यूशन देता है, पीएच 7 होती है। मैग्नीशियम क्लोराइड भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीशियम क्लोराइड का जो सोल्यूशन है वो वीकली एसिडिक होता है, जिसकी पीएच 6.5 होती है। दैट्स व्हाट वी हैव डन इन द क्लासेस, राइट।
So what's left now? Aluminum and silicon. आगे चलते हैं. Which pair shows two elements which could be Z? आप जानते हैं अगर एल्यूमिनियम है आपके पास तो ये आपको इसका जो क्लोराइड होगा वो वाटर के साथ रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके HCl बनाएगा और HCl की pH क्या होगी? लो 5, क्योंकि HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है. सिलिकॉन का जो क्लोराइड है वो SiCl4 है और अगर आप इसको वाटर के साथ ट्रीट करवाओगे तो ऑब्वियसली मैं यहाँ वाटर लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि ये क्यों हो रहा है ऐसा. वाटर के साथ ट्रीट करवाएंगे तो ये भी आपको HCl देगा और HCl क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है इसलिए pH बिलो 5 होगी. तो इसका मतलब एल्यूमिनियम और सिलिकॉन इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. सो बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. ठीक है. 16. Sodium, aluminum and silicon, 3 elements in period 3. Each element forms an oxide. ठीक है. सोडियम का जो ऑक्साइड है वो Na2O, एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड है वो Al2O3 और सिलिकॉन का जो ऑक्साइड है वो SiO2. ठीक है जनाब. वो कह रहा है which row has 3 correct properties of these oxides. तो सोडियम ऑक्साइड जो है बेसिक होता है, बिल्कुल सही बात है. एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेसिक नहीं होता है, एम्फोटेरिक होता है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया. ठीक है जी, ये ऑप्शन गलत हो गया. आगे चलते हैं. सिलिकॉन डाइऑक्साइड जॉइंट कोवेलेंट होता है, सिंपल मॉलिक्यूलर नहीं होता, इसलिए ये भी गलत हो गया. एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, इसका मतलब ये भी गलत हो गया. तो राइट आंसर क्या होगा? डी. ठीक है. वो आपसे कह रहे हैं प्रॉब्लम है यार. They are saying 0.25 gram of anhydrous magnesium nitrate is heated strongly until it completely decomposed. तो सबसे पहला काम मैग्नीशियम नाइट्रेट के मोल्स कैलकुलेट करने होंगे. अभी फर्स्ट लाइन पढ़ी और मैं समझता हूँ कि मोल्स ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट कैलकुलेट कर लीजिए. तो 0.25 को आप डिवाइड कर दीजिए मैग्नीशियम नाइट्रेट के MR से, which is 148.3. सो आई बिलीव आपके पास मोल्स आ जाएंगे 0.25 148.3. so it's going to be 1.685 into 10 to the power minus 3 moles. आगे चलते हैं. आप ये भी जानते हैं कि मैग्नीशियम नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं तो ऑब्वियसली वो डिकम्पोज होकर कन्वर्ट होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और मैग्नीशियम ऑक्साइड में और ऑक्सीजन गैस में. ठीक है. क्वेश्चन पढ़ते हैं. What is the total volume of gas produced measured under room condition? Total volume of gas produced. Okay. First of all, remember कि ये 2 moles हैं और ये दोनों गैसेस मिलाकर 5 moles हैं. तो अगर आपने 1.685 into 10 to the power minus 3 moles कैलकुलेट किए तो बताइए टोटल मोल्स ऑफ गैस कितने हो जाएंगे? So ये हो जाएगा बेटा आपके पास. So ये हो जाएगा बेटा आपके पास मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 2. So it's going to be 4.21 into 10 to the power minus 3 moles. वो आपसे वॉल्यूम कैलकुलेट करवाना चाहते हैं तो वॉल्यूम कैलकुलेट करना तो इजी है. आप मोल्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए RTP के वॉल्यूम से, which is 24,000 cm3. तो into 24,000 कर दीजिए. So it's going to be 101.14. This is C is going to be the right answer. ठीक है जनाब.
फिर वो कह रहे हैं एस्टाटीन इज below iodine in group 17 of the periodic table, which statement is most likely to be correct? Most likely to be correct. तो जरा देखिए, silver एस्टेटाइड reacts with an excess of dilute aqueous ammonia to form a solution. Solution नहीं बनता because dissolve नहीं होता ये. जब सिल्वर आयोडाइड डिसॉल्व नहीं होता, सिल्वर एस्टेटाइड भी डिसॉल्व नहीं होगा. देन आपके पास है एस्टाटीन एंड KCl reacts to form and chlorine. आप जानते हैं एस्टाटीन इज लेस रिएक्टिव. एस्टाटीन is less reactive, so no reaction. So no reaction. ये रिएक्शन ही नहीं होगा, इसलिए ये भी गलत. फिर वो आपसे पूछ रहे हैं पोटेशियम एस्टेटाइट एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट टू फॉर्म दिस. तो बेटा याद रखिएगा, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड नहीं होता, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है. तो ये भी गलत. तो राइट आंसर क्या होगा बेटा? डी. बिकॉज कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. वो एस्टेटाइट को ऑक्सीडाइज करके एस्टेटीन में कन्वर्ट करेगा. दैट्स राइट. 2019. What is the order of increasing melting point of 3 chlorides shown? Lowest melting point पहले आएगा, highest melting point बाद में आएगा. तो राइट आंसर इज बी. इसलिए क्योंकि यहां पर आयनिक बॉन्डिंग है और ये सॉलिड है. ठीक है, ये लिक्विड है और यहां पर गैस होगा. सो सॉलिड्स में मैंने आपको लिखवाया नोट्स में, सॉलिड्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है, लिक्विड में कम होती है और गैस में सबसे. ओहो नहीं नहीं, एक मिनट. दैट्स द कॉन्सेप्ट एक्चुअली. हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट जो है वो आपका MgCl2 होगा. या तो आंसर ए है या आंसर डी है. उससे कम, तो ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. ठीक है, बिकॉज ये आपका लिक्विड है, नॉन पोलर है. ये आपका सॉलिड है. ठीक है, और ये आपका सॉलिड है. लेकिन इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगी. सही है, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगी और इसके अंदर वैन डर वाल्स फोर्सेस होंगी. इसको इस तरह से भी तो देख सकते हैं. CCl4 में लेस इलेक्ट्रॉन और PCl5 में मोर इलेक्ट्रॉन. तो इसमें स्ट्रॉन्ग वैन डर वाल्स फोर्सेस होंगी, इसमें वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस होंगी. इसलिए CCl4 का मेल्टिंग पॉइंट कम और PCl5 का ज्यादा. और मैग्नीशियम क्लोराइड क्योंकि आयनिक कंपाउंड है, इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होती है, इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा. एंड आई होप इट मेक्स सेंस टू यू. तो ऑर्डर ये बनेगा मेल्टिंग पॉइंट्स का. Skeletal formula of a compound X is shown. ठीक है, which row is correct? Molecular formula 1 2 3 4 5 6 7 carbon atom. 3 plus 3 6 plus 1 7 7 8 9 10 11 11 and 3 14 हाइड्रोजन एटम एंड 1 ऑक्सीजन एटम. तो ये फॉर्मूला कहाँ लिखा हुआ है? ये फॉर्मूला लिखा हुआ है ए में और बी में. तो या तो ए सही है या बी सही है. आप जानते हैं कि ये कीटोन है. कीटोन cannot react with failing reagent. सही है.
तो जाहिर सी बात है फेलिंग रिएजेंट से रिएक्शन नहीं करेगा तो नो चेंज, एंड देयरफॉर ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. Just give me 1 minute, please. All right. So issue is, now let's talk about the question number 21. Which statement is correct? Okay. सबसे पहले हम 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेनोइक एसिड बनाते हैं. ये प्रोपेनोइक एसिड हो गया और ये 2,2-डाइमिथाइल हो गया. ठीक है, ये ऑप्शन ए के लिए वर्किंग कर रहे हैं हम. और प्रोपाइल मिथानोएट हो गया. तो प्रोपाइल मिथानोएट का स्ट्रक्चर ये होगा COO CH2 CH2 CH3. अब नोट करें, अगर आइसोमर है एक दूसरे के तो जाहिर सी बात है दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होना चाहिए, राइट? तो कार्बन काउंट करो 1 2 3 4 5. यहाँ कार्बन काउंट करो 1 2 3 4. तो बेटा यहाँ पर कार्बन एटम तो डिफरेंट है. यहाँ 5 कार्बन एटम्स हैं और यहाँ पर 1 2 3 4 कार्बन एटम्स हैं. तो जब कार्बन एटम्स डिफरेंट होंगे तो जाहिर सी बात है आइसोमर्स तो नहीं हुआ, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो नहीं बनेगा, इसलिए ऑप्शन इनकरेक्ट होगा. अब हम बी की बात करेंगे, 2-मिथाइल ब्यूटेन 2-ओल. तो भाई बी में 2-मिथाइल ब्यूटेन 2-ओल का स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, 2-मिथाइल ब्यूटेन 2-ओल. ये 2-मिथाइल ब्यूटेन 2-ओल हो गया. सही है. हेक्सेन 3-ओल, हेक्सेन 3-ओल ये हो जाएगा CH3 CH2 CH OH CH2 CH3. नहीं बल्कि एक और. ठीक है, लेट्स काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स हैं इसमें, राइट? लेट्स टॉक अबाउट दिस. 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम है. तो जाहिर सी बात है जब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डिफरेंट हैं तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा आइसोमर, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए ना आइसोमर के लिए. ये याद रखना कि फॉर आइसोमर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नीड्स टू बी सेम. ठीक है, let's talk about option C now. थ्री मिथाइल ब्यूटेन 2-ओन. तो ब्यूटेन 2-ओन ये हो गया आपके पास और 3 मिथाइल ये हो गया और ये हो गया. ब्यूटेन 2-ओन ये हो गया और 3 मिथाइल भी हो गया. पेंटेनाइल कह रहा है CH3 CH2 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 CHO. अब देखो कार्बन एटम कितने हैं, 1 2 3 4 5. सही है, यहां पर कार्बन एटम कितने हैं, 1 2 3 4 5. 5 कार्बन एटम्स आ गए. तो लेट्स टॉक अबाउट द हाइड्रोजन एटम्स नाउ. हाइड्रोजन काउंट करो, 3 + 3 + 3 9, 9 + 1 10 एंड 1 ऑक्सीजन. यहां काउंट करो हाइड्रोजन, 3 5 5 and 7, 7 and 2 9 and 1 10. तो बेटा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम हो गया. इसका मतलब ये आपका ठीक है, इसका मतलब C इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. ठीक है, आई होप इट मेक्स सेंस टू यू. उसके बाद है आपके पास butanene and butene are treated separately with cold dilute acidified magnate 7 ions. यार जब butanene को मैं ट्रीट करूंगा ना तो मेरे पास डायोल बनेगा और डायोल की शक्ल कुछ ये होगी मेरे पास. ये butanene से बन गया मेरे पास. ठीक है, और जब butanene डायो कोल्ड KMnO4 से रिएक्शन करेगा ना तो डायोल कुछ इस तरह के बनेंगे मेरे पास. ठीक है, तो ये बना है मेरे पास butanene से
और ये बना है मेरे पास ब्यूटीन से, ठीक है। वन डायोल कंटेन टू प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप, तो एक डायोल ऐसा है जिसके अंदर टू प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप है, जो कि बिल्कुल सही बात है। ये देखो ये रहा प्राइमरी अल्कोहल, जिसमें आपके पास एक डायोल ऐसा है जिसमें प्राइमरी अल्कोहल है, राइट। तो ये स्टेटमेंट तो ठीक है। फिर उसके बाद वो कह रहे हैं वन डायोल कंटेन प्राइमरी एंड अ सेकेंडरी अल्कोहल। इसमें तो है प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल, इसमें नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। वो 22 वो नहीं, गाइस ही सेड टू प्राइमरी अल्कोहल्स, तो बेटा टू प्राइमरी अल्कोहल्स यहां भी नहीं है और यहां भी नहीं है, इसका मतलब ये तो गलत हो गया स्टेटमेंट। फिर वो कह रहा है वन डायोल कंटेन प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल, ये बिल्कुल ठीक बात है, इसलिए क्योंकि ये एग्जिस्ट कर रहा है, ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, ठीक है। फिर वो कह रहा है वन डायोल कंटेन टू सेकेंडरी अल्कोहल ग्रुप, बिल्कुल सही बात है, ये दोनों के दोनों सेकेंडरी है, तो ये भी ठीक है। फिर उसके बाद वो कह रहे हैं बोथ एल्कीन्स एग्जिबिट सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, भाई ब्यूटूइन तो सिस ट्रांस दे देगी, ठीक है, लेकिन ब्यूटवनीन में सिस ट्रांस नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो एक्स और वाई इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। फिर उसके बाद है टू ब्रोमो टू मिथाइल पेंटेन इज अ टर्शियरी हैलोजिनोल एल्केन, ठीक हो गया, ये उन्होंने बता दिया कि भाई ये टर्शियरी हैलोजिनोल एल्केन है। व्हेन which organic products are formed when 2-bromo-2-methylpentane reacts with hot concentrated ethanolic NaOH, तो यार इसका मतलब इस अल्काइल हैलाइड की एलिमिनेशन कराओ और एल्कीन बनाओ, तो चलें हम एलिमिनेशन करते हैं, इस अल्काइल हैलाइड का पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। 2-bromo-2-methylpentane 1 2 3 4 5, ये पेंटेन हो गया। 2-bromo-2-methyl, ये आ गया 2-bromo-2-methyl, ठीक है। एलिमिनेशन करनी है मुझे, ये अल्फा कार्बन, अल्फा से जो अटैच होता है वो बीटा, ये भी बीटा कार्बन एटम और ये भी बीटा कार्बन एटम, क्योंकि ये दोनों बीटा कार्बन एटम है, सेम है, तो इसलिए इन दोनों में से किसी एक से भी जो है वो आप एलिमिनेशन करा लो, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, बट ऑब्वियसली एक एल्कीन यहां से बनेगी और एक एल्कीन यहां से बनेगी, दो डिफरेंट टाइप्स की एल्कीन्स बनेंगी यहाँ पर, सही है। तो हम दोनों बना के दिखा देते हैं आपको। एक एल्कीन बनेगी CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C CH3 एंड CH3, और दूसरी एल्कीन बेटा यहां से बनेगी तो वो होगा CH3 CH2 CH2 C CH3 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, 2-मिथाइल पेंटुईन, तो 2-मिथाइल पेंटुईन कहां पर है, ये भी है और ये भी है, और इसका नाम क्या हो जाएगा, 2-मिथाइल पेंटवनीन, तो 2-मिथाइल पेंटवनीन कहां पर है, यहां पर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास 2-मिथाइल पेंटवनीन और 2-मिथाइल पेंटुईन ये बना हुआ, राइट, तो इसका मतलब बी इज द राइट आंसर।
फिर उसके बाद वो कह रहे हैं पॉलीप्रोपीन इज एन एडिशन पॉलीमर, व्हाट आर द सीसी बॉन्ड एंगल्स अलोंग इट्स पॉलीमर चेन। बेटा सीसी बॉन्ड एंगल्स मांग रहे हैं पॉलीमर चेन में, तो जाहिर सी बात है सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम होता है पॉलीमर। तो जब सिंगल बॉन्डेड कार्बन होगी तो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड क्या होंगे 109.5 डिग्री के, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी सबकी। तो राइट आंसर इज ए 25. An alcohol has the molecular formula C5H12O. It has several isomers. Which isomer forms a yellow precipitate with alkaline aqueous iodine? That's the trickiest part, because we need to draw each and every structure of these alcohols. Chale, let's start with the first one. Propane 1-ol, 1 2 3, ये हो गया प्रोपेन 1-ol. 2,2 डाइमिथाइल कह रहे हैं, ये आ गया 2,2 डाइमिथाइल. ठीक है, ये रिएक्शन अल्कलाइन एक्वस आयोडीन से नहीं करेगा, बिकॉज अल्कलाइन एक्वस आयोडीन से रिएक्शन करने के लिए अल्कोहल के पास CH3CHOH ग्रुप मौजूद होना चाहिए. सही है, ये ऑप्शन गलत हो गया. उसके बाद आपके पास क्या है 2-मिथाइल ब्यूटेन 2-ओल, 2-मिथाइल ब्यूटेन 2-ओल, तो ये हो जाएगा CH3, 2-मिथाइल ब्यूटेन 2-ओल, ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा C, ये 2-ओल और 2-मिथाइल ये आ गया. सो नो CH3, इसमें भी नहीं होगा, तो यहां लिख दीजिए नो CH3CHOH ग्रुप, इसमें भी नो CH3CHOH ग्रुप, ये दोनों गलत हो जाएंगे. उसके बाद हम कहते हैं 3-मिथाइल ब्यूटेन 2-ओल. ओके, 1 2 3 4, ये ब्यूटेन 2-ओल हो गया और ये 3-मिथाइल हो गया. ये CH, ये CH, ये CH3. It is going to be the right answer because CH3CHOH ग्रुप अवेलेबल है आपको. सही है, CH3CH ग्रुप अवेलेबल है, इसका मतलब आयोडोफॉर्म का टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा यहां से. यही आपका आंसर होगा. This will give positive test of iodoform. Question 26. When compound X is heated under reflux with aqueous sodium hydroxide, solution 2 products are formed. Sodium ethanoate and hexane 1-ol. सोडियम एथेनोएट कहां से मिल रहा है ये चेक करना है आपने. सोडियम एथेनोएट बेटा मिलेगा आपको यहां से मिल रहा है सोडियम एथेनोएट, ये दे रहा है सोडियम एथेनोएट. ठीक है, और सोडियम एथेनोएट यहां से भी मिल रहा है आपको. तो या तो बी आंसर है या फिर डी आंसर है. राइट. हेक्सेन 1-ol कहां से मिलेगा. हेक्सेन 1-ol के लिए 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन एटम, तो ये तो ऑप्शन ही गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें तो 7 कार्बन एटम है. उसने कहा हेक्सेन 1-ol. अब इसको काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी ये पूरा का पूरा सेगमेंट क्या हो जाएगा हेक्सेन 1-ol. तो इसका मतलब डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, बिकॉज ये पूरा का पूरा ग्रुप क्या दे रहा है आपको हेक्सेन 1-ol. तो हम बता देते हैं कि जी ये हेक्सेन 1-ol है और आपको ये क्या मिलेगा इथेनोइक एसिड, और क्योंकि मीडियम एल्कलाइन है इसलिए सोडियम एथेनोएट. ठीक है जनाब, तो ये डी आंसर हो गया.
यहां बता दीजिए कि ये 7 कार्बन है, नॉट पॉसिबल। ठीक है, व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट जी ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। आप जानते हैं यहां पर अप्लाई करेंगे हम मार्कोनिकोव रूल, बिकॉज अनसिमेट्रिकल एल्कीन और अनसिमेट्रिकल रिएजेंट रिएक्ट कर रहे हैं। अच्छा, हाँ ठीक है। तो आप जानते हैं अगर मैं इस स्ट्रक्चर को यहां दोबारा लिखूं तो देखें, एक ब्रोम यहां पर आएगी ब्रोमीन, यहां आएगा H, ये आ गया ब्रोमीन और ये आ गया H। सिमिलरली यहां पर क्या आएगा, ब्रोमीन, और यहां पर क्या आएगा, H। तो प्रोडक्ट ये बनेगी। अब ये प्रोडक्ट कहां लिखी हुई है, ये प्रोडक्ट यहां लिखी हुई है आपके पास। इसका मतलब राइट आंसर इज बी। द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड Q इज शोन। ठीक है, हाउ मैनी chiral centers are present in a molecule of Q। chiral center in a molecule of Q देखना है तो सबसे पहले तो ये डिटरमिन कर लो कि यार 2 सिमिलर ग्रुप्स कहाँ लगे हुए हैं या 3 सिमिलर ग्रुप्स कहाँ लगे हुए हैं। ये नहीं होगा, ओहो ये नहीं होगा क्योंकि 3 सिमिलर ग्रुप हैं, ये भी नहीं होगा क्योंकि 3 सिमिलर ग्रुप हैं, ये कार्बन भी नहीं होगी क्योंकि 2 सिमिलर मिथाइल लगे हुए हैं। ठीक है, ये भी नहीं होगा क्योंकि 2 सिमिलर है। ये कार्बन भी नहीं होगी क्योंकि डबल बॉन्ड है। ये कार्बन भी नहीं होगी क्योंकि 2 सिमिलर है। 2 सिमिलर, 2 सिमिलर, 3 सिमिलर, 2 सिमिलर, 2 सिमिलर, 2 सिमिलर, 2 सिमिलर, 2 सिमिलर, ये भी नहीं होगी क्योंकि 2 सिमिलर अल्काइल ग्रुप्स हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ 2 सिमिलर हाइड्रोजन है, ये भी नहीं होगा। ये भी नहीं होगा क्योंकि 2 सिमिलर हाइड्रोजन है। तो व्हाट्स लेफ्ट नाउ, लेट्स काउंट देम। ये फर्स्ट हो जाएगी आपके पास, ये सेकंड हो जाएगी आपके पास, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ और ये सेवेंथ। तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी। ठीक है, ट्वेंटी-9 compound X has the infrared spectrum shown। ठीक है, what could be the identity of the compound X? well ये ब्रॉड पीक है आपके पास। ठीक है, और ये शेप बहुत मैटर करती है, मैंने कहा था। तो ये 3000 सेंटीमीटर इनवर्स के ऊपर ब्रॉड स्ट्रॉन्ग पीक है, दैट रिप्रेजेंट्स द प्रेजेंस ऑफ COOH। तो COOH ऑप्शन ए के अंदर है मेरे ख्याल से। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका पॉसिबल आंसर हो सकता है। ठीक है, ये देखें, ये वाली जो पीक है ये C डबल बॉन्ड O से मिल कार्बोनाइल की होगी 1720 सेंटीमीटर इनवर्स। और बेटा ये वाली जो पीक है ये एक्चुअली 1200 सेंटीमीटर इनवर्स के ऊपर होगी, और ये आपको मिल रही होगी C सिंगल बॉन्ड O की, और ये वाली पीक मिल रही होगी बेटा C डबल बॉन्ड O की। तो राइट आंसर इज ए। Which reaction produces an organic anion with good yield? बेटा ऑर्गेनिक एनाइन बोला है और साथ में कह रहे हैं गुड यील्ड। तो जरा चेक करते हैं। हीटिंग इथेन नाइट्राइल अंडर रिफ्लक्स विद डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो भाई ऑर्गेनिक एनाइन मिलेगा यहां पर आपको, और उस ऑर्गेनिक एनाइन को, यानी पहले इथेन नाइट्राइल है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इथेनोइक एसिड, बिकॉज CN कन्वर्ट हो रहा होगा COOH। और जब मीडियम एल्कलाइन अप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा CH3 COO नेगेटिव Na पॉजिटिव। तो ये आपका ऑर्गेनिक एनाइन हो गया ना बेटा। सही है, तो यही तो वो मांग रहा था आपसे। और गुड यील्ड इसलिए होगी क्योंकि जाहिर सी बात है इरिवर्सिबल रिएक्शन है, 100% प्रोडक्ट मिलेगी। तो राइट आंसर प्रॉब्ली ए,
बट हम आगे भी पढ़ लेते हैं। इथेन नाइट्राइल अंडर रिफ्लक्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। हाँ बिल्कुल सही बात है। अगर इथेन नाइट्राइल सल्फ्यूरिक एसिड एसिड हाइड्रोलाइज करेगा तो इथेनोइक एसिड बनेगा। तो ये एनाइन तो नहीं है, नॉट एन एनाइन। तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है। हीटिंग इथेन विद सोडियम मेटल, इथेन कैन नॉट रिएक्ट विद सोडियम मेटल। हीटिंग इथेनॉल अंडर रिफ्लक्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, इथेनॉल जो है वो न्यूट्रल होते हैं, they cannot react. The right answer is A. Next, the definition of many chemical terms can be illustrated by chemical equations. Which terms can be illustrated by an equation that includes the formation of positive ion? So ionization energy is basically the formation of positive ion. Heterolytic fission of a covalent bond that gives you cation and anion. इसका मतलब यहाँ से भी पॉजिटिव आयन बनेगा। एटोमाइजेशन 1 मोल ऑफ गैसियस एटम फॉर्म जब होता है तो उसको कहते हैं। तो इसका मतलब ये बी आंसर होगा, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट ठीक है। फिर वो कह रहे हैं विच मॉलिक्यूल हैज नो ओवरऑल डायपोल। भाई नो ओवरऑल डायपोल कह रहे हैं, तो राइट आंसर इज BF3, क्योंकि इसमें प्लेनर ज्योमेट्री होती है, ये डायपोल मोमेंट को कैंसिल कर देता है। मीथेन नॉन पोलर होता है, उसमें हाँ इसमें भी नहीं होगा डायपोल, ये भी ठीक है, सही है। फॉस्फोरस पेंटाफ्लोराइड, फॉस्फोरस पेंटाफ्लोराइड में भी डायपोल नहीं होगा। कैसे नहीं होगा जरा देखिए, ये सिखाई है मैंने चीज आपको। देखिए ये लीनियर फॉर्म में है तो एक दूसरे के डायपोल मोमेंट को कैंसिल कर देंगे, ठीक है, सही है। लेकिन आप नोट करें ये पूरा का पूरा सेगमेंट क्या है, प्लेनर ज्योमेट्री में एग्जिस्ट कर रहा है। तो जब प्लेनर ज्योमेट्री में एग्जिस्ट करेगा तो ये भी डायपोल मोमेंट कैंसिल कर देगा। इसका मतलब ये भी ठीक है। राइट आंसर इज ए। ठीक है जनाब। 33, carbon exists in several different forms. Two of these forms are Buckminster fullerene and graphene. Buckminster fullerene is a fluorine allotrope of carbon. Which statement about Buckminster fullerene and graphene are correct? Both have delocalized electrons. बिल्कुल सही बात है, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं Buckminster fullerene has a giant molecular structure. By Buckminster fullerene is a nanoparticle, so it doesn't have a giant structure. It is a nanoparticle. Giant नहीं हो सकता, इसका मतलब D is going to be the right answer. 34, carbon monoxide burns redly in oxygen to form carbon dioxide. What does this information suggest? The +4 oxidation state of carbon is more stable than +2. Obviously ये बिल्कुल ठीक बात है, इसलिए क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड रेडली ऑक्सीडाइज हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में। दिस शोज कार्बन मोनोऑक्साइड लेस स्टेबल है, कार्बन डाइऑक्साइड मोर स्टेबल है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल है। तो पहला स्टेटमेंट ठीक है। फिर वो कह रहे हैं द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर नेगेटिव देन द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। एग्जैक्टली ये बात भी बिल्कुल ठीक है। उसकी वजह ये है कि हमने आपको पढ़ाया भी, आपके रजिस्टर में लिखा होगा कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन अगर नेगेटिव है तो कंपाउंड स्टेबल होता है, ठीक है। तो इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड इज स्टेबल मॉलिक्यूल, क्योंकि वो यहाँ पर कह रहे हैं कि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल है, तो इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल स्टेबल है, इसका मतलब उसकी डेल्टा H की वैल्यू मोर नेगेटिव होगी एज कम्पेयर टू कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर वो कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज लाइकली टू बी हाई। अच्छा ऐसा है कि देखें Kc का एक्सप्रेशन लिख दीजिए यहाँ पर, या Kp का एक्सप्रेशन लिख दीजिए, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट होगा। ओके तो केस चलें ठीक है, कोई इशू नहीं है। राइट, अगर
कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड में जाना फेवरेबल है, ज्यादा बेहतर है, ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ है। तो रिएक्शन देखो ये क्या कह रहा है, +4 oxidation state of carbon is more stable, which is why carbon monoxide burns readily in oxygen to form carbon dioxide. That shows कि reaction is moving in the forward direction. If reaction is moving in the forward direction, तो जाहिर सी बात है प्रोडक्ट का अमाउंट ज्यादा होगा, और जब आप जानते हैं कि जब प्रोडक्ट का अमाउंट ज्यादा होता है तो केसी की वैल्यू भी ज्यादा होती है। तो ये तो कह रहे हैं इज लाइकली टू बी हाई, तो ये थर्ड भी सही है। तो राइट आंसर इज ए। तो अब यहां लिख सकते हैं मोर प्रोडक्ट मोर Kc एंड Kp की वैल्यू। फिर वो आपसे पूछ रहे हैं द कैटालिटिक कन्वर्टर्स फिटेड टू कार गैस रिमूवल पोल्यूटेंट्स फ्रॉम द एग्जॉस्ट गैसेस, सम ऑफ द रिएक्शन दैट अकर्स इन्वॉल्व्स ऑक्सीजन व्हिच कम्स फ्रॉम द एयर। ओके, फिर वो कह रहे हैं व्हिच पोल्यूटेंट इन द एग्जॉस्ट गैसेस विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन ऑन द सरफेस ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, क्योंकि NO2 जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करता, एक्चुअली वो करता है कार्बन मोनोऑक्साइड से। सही है भाई। और ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में और NO में। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि वो कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन कर रहा है, ऑक्सीजन से नहीं रिएक्शन कर रहा। अनबर्न्ड फ्यूल अलबत्ता ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट होते हैं, इन कैटालिटिक कन्वर्टर ऑक्सीडाइज हो रहे होते हैं, तो ये ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कैटालिटिक कन्वर्टर में कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा होता है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। तो राइट आंसर गाइस इज गोइंग टू बी सी। Chlorine reacts with sodium hydroxide in two different ways depending on the temperature. That's a very powerful statement. आप जानते हैं कि क्लोरीन सोडियम हाइड्रोक्साइड से टू डिफरेंट कंडीशंस के अंदर रिएक्शन करता है, कोल्ड कंडीशन जिसमें टेम्परेचर कम होता है, एंड हॉट कंसंट्रेटेड कंडीशन जिसमें टेम्परेचर ज्यादा होता है। तो ये रिएक्शन अंडर कोल्ड कंडीशन हुआ हुआ है, और ये रिएक्शन अंडर हॉट कंसंट्रेटेड कंडीशन हुआ हुआ है, राइट? Which statement about these reactions are correct? Reaction 2 require a higher temperature than reaction 1. That's correct. ये high temperature पे है, ये low temperature पे है, तो statement 1 is right. तो हम यहाँ लिख देते हैं high temperature occur at high temperature and occur at low temperature. ठीक है। फिर वो कह रहे हैं the products of the reaction 1 shows chlorine in two different oxidation state. प्रोडक्ट रिएक्शन 1 की जो प्रोडक्ट है उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है और इधर +1 है, तो दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसका मतलब ये भी ठीक है। फिर वो कह रहे हैं द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन 2 शोस ऑक्सीजन इन टू डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। नहीं भाई, ऑक्सीजन की दो ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, ऑक्सीडेशन स्टेट विल रिमेन सेम, ऑक्सीडेशन स्टेट विल रिमेन सेम इन द एंटायर इक्वेशन। ये गलत हो जाएगा बेटा, ठीक है। राइट आंसर इज बी। यहां भी ऑक्सीजन -2 है, यहां भी ऑक्सीजन -2 है, तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रही बेटा, ठीक है। In which of the reaction is the organic compound oxidized by the given reagent? HCN से तो aldehyde always undergoes nucleophilic addition, और aldehyde फैलिंग reagent, टॉलेंस reagent, iodoform, K2Cr2O7 इन सबसे ऑक्सीडाइज होता है। HCN से तो ऑक्सीडाइज नहीं होता है, HCN से तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करता है, इसलिए पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। लेकिन आप नोट करें एल्डिहाइड टॉलेंस से भी रिएक्शन करता है, फैलिंग से भी ऑक्सीडाइज होता है, इसलिए राइट आंसर होगा सी। When the apparatus setup has shown, an orange precipitate forms in the test tube Z. An orange precipitate forms, right? तो orange precipitate 2,4-DNPH reagent की वजह से बन रहे हैं, और 2,4-DNPH reagent की वजह से अगर orange precipitates बन रहे हैं, तो इसका मतलब Z के अंदर या तो एल्डिहाइड बन रहा होगा या कीटोन बन रहा होगा, या हो सकता है दोनों बन रहे हैं, राइट? क्यों? ठीक है। और एक और बात, कंपाउंड Q जो है वो एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ रिएक्शन कर रहा है, इसका मतलब कंपाउंड Q ऑक्सीडाइज होगा
और ऑक्सीडाइज होकर या तो वो एल्डिहाइड बनाएगा या कीटोन बनाएगा जो कि 2,4-DNPH का टेस्ट पॉजिटिव देगा। वो कह रहे हैं व्हाट कुड कंपाउंड बी, तो भाई ये प्राइमरी अल्कोहल है, तो हम जानते हैं कि प्राइमरी अल्कोहल गिव्स एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड गिव्स 2,4-DNPH का टेस्ट, तो ये बिल्कुल ठीक है। ये सेकेंडरी अल्कोहल है और सेकेंडरी अल्कोहल गिव्स कीटोन और कीटोन गिव्स पॉजिटिव टेस्ट ऑफ 2,4-DNPH, तो ये भी ठीक है। ये टर्शियरी अल्कोहल है और आप जानते हैं टर्शियरी अल्कोहल डू नॉट ऑक्सीडाइज, ये गलत हो गया एंड देयरफॉर बी इज द राइट आंसर। 39 chlorofluoroalkanes that diffuse into the stratosphere are broken down by ultraviolet radiations. Ultraviolet radiation से broken होते हैं. Radicals are generated that cause depletion of ozone. What are these radicals? भाई ओजोन की जो डिप्लीशन होती है ना वो क्लोरीन रेडिकल्स से होती है। Chlorine radicals involves ozone depletion. इसलिए डी इज द राइट आंसर, क्योंकि पहला ठीक है, ये दोनों गलत। फिर आपके पास a mixture of the three isomers of C2H2Cl2 is polymerized. Okay, which sequence will be seen within the polymer chain? Okay, अच्छा हम क्या करते हैं, हम पहले तो मोनोमर बना लेते हैं। ये हो जाएगा CHCl डबल बॉन्ड CHCl, ये एक मोनोमर हो गया। ये भी तो हो सकता है कि दोनों क्लोरीन एक ही कार्बन के साथ अटैच हो जाए। ठीक है, और जाहिर सी बात है ये सिस सिचुएशन है तो ट्रांस भी तो हो सकती है इसके लिहाज से। ठीक है, अब पॉलीमेरिक चेन बनानी है मैंने और आपने मिलके। तो पॉलीमेरिक चेन देखो, ये देखो अगर ये आपस में कंबाइंड हो जाए तो ये बन जाएगा, है ना। ठीक है, फिर नोट करो, अगर ये आपस में कंबाइंड हो जाए तो CH2CHCl ये बन जाएगा। ठीक है, और अगर ये आपस में कंबाइंड हो जाए तो फिर ये बन जाएगा। तो इसका मतलब तीनों करेक्ट होंगे। तो अगर तीनों करेक्ट है तो राइट आंसर क्या होगा? ए। थैंक यू वेरी मच गाइस।